You have around 34,000 followers on LinkedIn, 15,000 on YouTube, and around 28,000 on Instagram. Hi, I'm Ria. Yes, that girl right there. The firstborn of an Indian middle class family. Ah, that's a long story. So now a lot of MBA aspirants will be giving the interviews for B schools after their CAT results are out. So any tips for the audience out there? If you see your journey, a girl from Jamshedpur went to Bangalore and then traveling across the Europe. कैसे फीलिंग थी वो? Now you are in the full-time role in a job. You are focusing on your health also. You have this some fitness related goal also, like half marathon in this year. How are you managing content creation amidst all these things that is happening in your life? How do I put this? It did not get me a lot of followers. It because I'll explain why. ये बाद में समझ आया. NAS summit एक होता है. There यशराज मुखाटे ने बोला था कि you have 3 chances on Instagram. One trend on social media that you would like to disappear and why? This is a tough one. Hi, Ria, and welcome to our show, The Creators Podcast, where we explore dreams, stories, and success, one creator at a time. During my MBA days, जब मैं अपने कॉलेज में MBA कर रहा था, तो I came across your content on Instagram, on LinkedIn. तुम्हारी एक्सचेंज में जब तुम यूरोप गए थे, तो वो रील्स आती थी. तो आई हैव इंटरेक्टेड अ लॉट विद योर कंटेंट एंड फोमो भी बहुत होता था. So, and now I am doing this. It's also into the content creation journey as a passion project. And मैं भी जब सोचा था यार कि यार मैं क्या नाम रखूं, because I always wanted to do something in creator economy. So I started this as a name of Creators Podcast. So that was my story with the name of my channel. But I want to know about your story, the story behind the name of your channels, the realizations. The first time I created my Instagram page, it was normal Ria Mehta, and it's a common name, तो मुश्किल हुई थी ढूंढने में, and I think I had to put some number behind it, Ria Mehta 18, because maybe my birth date is 18, so I'd put Ria Mehta 18, something like that. And then one fine day, a friend of mine, a very close friend of mine, he's very creative, quirky, and I don't remember if it was on a phone call or on a WhatsApp text or we were in meetings sitting together in person. He said, I have a very nice name for you. What do you think about realizations? And I was like, I did not understand it at first. And then he said RIYALIZATIONS. And it's like, wow, this is so nice. And the moment I understood what he's talking about, I just checked. It was available. I changed my Instagram handle. This is how it happened. Ekdam simple. But like ever since I've come up with the name, I've gotten a lot of compliments. And every time, let's say I'm doing a podcast, and realizations is a word that we use so often with such a deep meaning. And every time someone says realizations in the conversation, everyone I like pause and I'm like, wow, see, this is me. Class में in IMB, in a very normal random, let's say, a finance class, the professor says, and this was my realization from something like this. And sometimes I've seen people turning back and looking at me, and I'm like, so yeah, I did very well on the naming front, all thanks to my friend Charan. Yeah. So Charan, if you watch this, thanks. Yes, because काफी अच्छा नाम है and काफी commonly used होता है, and then you look around कि यार मेरे बारे में बात हो रही है. Relevant to the kind of content I want to create, something that makes people think, something that I have realized through my experiences. So yeah. Mhm. That's great. So now with the realizations name,
You have around 34,000 followers on LinkedIn, 15,000 on YouTube, and around 28,000 on Instagram, which is around total of 77,000 of distribution. And I guess तुमने ये सिर्फ around 2 years पहले start किया था when you were doing MBA at IIM Bangalore. So it's actually very truly commendable because we all know, and to the audience who don't know, कि B school में बहुत ज़्यादा hectic रहता है, especially in the first year. You have a lot of case studies, you have a lot of competitions, academic rigor, then you have to prepare your CV, you have to sit for summer internship. एंड सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पर यू हैव टू शो अप डेली. तुम्हें डेली शूट करने पड़ेंगे, तुम्हें सोचना पड़ेगा, तो समटाइम्स क्रिएटिव ब्लॉक ऑल्सो हिट्स एंड एडिट करना पड़ेगा. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. सो यू हैव डन इट अलॉन्ग विद द MBA. इट्स रियली इंस्पायरिंग. So my agenda for today's podcast is number one, to uncover the journey of creative Ria, how you started about the content creation. Second, what made you stay consistent with it, and how you have reached where you are right now along with your plans with this hustle. And third, since you create content around CAT and MBA, तो थोड़ा सा, क्योंकि बी स्कूल भी इंटरव्यूज अभी स्टार्ट होने वाले हैं, चल रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए भी टिप्स, तो थोड़ा बी स्कूल का ज्ञान भी यहाँ पर देंगे. Oh, तो ग्रेट. great. I'll take one by one, all of them. And if I forget the question, you'll have to remind me. Let's begin with how it started and all. So I think it We'll was start with the journey from the UG days. Oh. Yeah. So my UG, it was a engineering college. I studied at NIT Jamshedpur, EC, and it was like very normal, very typical engineering college setup. Classes थी पर उतना ज़्यादा, मतलब you don't study much before the exam. You sit for attendance. You attend your classes. शाम को you enjoy with your friends. You are a part of a lot of clubs and committees. At least I was a part of some 5-6 clubs and committees. Athletics was a very big part of my college days. I was even my college's athletics team captain, and we went to inter NIT every single year. I won medals every single year. तो उसमें बहुत टाइम जाता था. Alumni committee में बहुत टाइम जाता था. Quizzing society में बहुत टाइम जाता था. Literary and debating society में बहुत, मतलब a proper full-fledged college experience with all every kind of exposure you can think of. And like, but the good part was also that कि because it was a good college, तो placements और वो सब की बहुत ज़्यादा चिंता थी नहीं. If you work hard, there are going to be good companies coming on campus, and everyone was almost pretty sure कि मतलब अच्छी नौकरी भी लग जाएगी. तो it was very good, very comfortable 3.5 years, and then उसके बाद last के 6 महीने were COVID years. If I am to think back कि उस टाइम कुछ कंटेंट रिलेटेड किया था कि नहीं, तो एकदम एक्सप्लिसिटली तो नो. इट वाज लाइक आई सेड, यही सब टिपिकल चीजें ही करी थी. बट आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग. तो उस टाइम भी आई रिमेंबर आई ट्राइड क्रिएटिंग अ ब्लॉग. दैट इज द क्लोजेस्ट आई हैव कम टू कंटेंट क्रिएशन इन माय कॉलेज. बट फिर कंसिस्टेंसी चली गई, और मतलब पहले इट वाज लाइक कि शुरू में बहुत एक्साइटमेंट था. डोमेन नेम ढूंढा, डोमेन नेम खरीदा, लोगो बनाया. मैंने मतलब एक आधा हफ्ता बहुत मेहनत की, 2-3 पीसेस भी लिखे, बट उसके बाद couldn't continue. Maybe फिर वो काम जैसा लगने लग गया, और maybe just life caught up and I could not continue. That's one closest thing. और कभी कभार मैं, बहुत कभी कभार, मतलब once in 2-3 months, once in 6 months, कभी कभी मैं LinkedIn पे भी लिखती थी. Yeah, so this is pretty much UG. yes. This is NIT Jamshedpur. फिर once my job started at Tata Steel, तब तो it was close to zero. खत्म, मतलब no kind of creative outlet, no writing, no recording anything as such. One more point that I think that I can cover here is that my dad is a photographer. He's a wedding photographer. तो मैंने अपने आसपास कैमरास और एडिटिंग तो बचपन से देखी है, पर मैंने कुछ नहीं किया है. मतलब I've just seen him doing that. I've not contributed in any way. My brother has, and उसको देख करके कभी कभार लगता था कि okay, he knows how to edit. He's very good at DSLR photography, very good at videography. But मैंने कभी नहीं किया. मतलब घर पे कैमरा उठा करके maybe पेड़ पौधे ये सब, but never indulged.
तो ये बस डू यू थिंक वहाँ से इंस्पिरेशन आई हो कि मे बी फ्यूचर में करेंगे, चलो घर पर मतलब डैड वाज फोटोग्राफर, भाई भी डीएसएलआर। इंस्पिरेशन का नहीं पता, बट हेल्प बहुत मिली है, क्योंकि ओके। माय ब्रदर हैज बीन इंटरेस्टेड इन इट, तो कभी भी कुछ मतलब एडिटिंग में या फिर कोई क्रिएटिव आइडिया की ऐसे शूट कर सकते हैं। आई थिंक बिगेस्ट हेल्प हैज बीन इन एडिटिंग एंड आल्सो नोइंग कि व्हाट इज द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, एक मिनिमम, एक लाइटिंग, एक माइक, एक अच्छा फोन। दो इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग गया, बट जब सोचा कि हाँ अब एक अच्छा फोन लेना है, अब एक अच्छी लाइट लेनी है, अब एक अच्छा माइक लेना है, तो वी न्यू वेयर टू लुक एंड कैसे जज करना है ऑन बजट में कौन सा अच्छा मिल सकता है। तो ये सब का बहुत हेल्प मिल गया जब डिसाइड किया शुरू करने का। ओके, या कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हाँ 2 साल टाटा स्टील में, फिर कुछ नहीं, नथिंग, ज़ीरो। Tata Steel, I've read it somewhere that you participated in case comp and then went through Tata Steel, right? So I mean, won the case comp and then you got the job in Tata Steel. तो ये एक्चुअली मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, बट इट वाज इन एमबीए, नॉट इन माय यूजी की आई पार्टिसिपेटेड इन सम केस कंपटीशन, बट एमबीए में केस कंपटीशंस दिए, देन जॉब ऑफर्स आए। सो टू द ऑडियंस आउट देयर, एक बार अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्या? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इंस्पिरेशन कहाँ से है कि यार यूजी में भी केस कॉम्प करते हैं, केस कंपटीशन, एंड देन वो जब जॉब वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली विदाउट इवन सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स, वो कैसी फीलिंग थी एंड व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली डू दैट? जब हम सेकेंड ईयर में थे तो एक टाटा स्टील का एक कंपटीशन था, टाटा स्टील वुमेन ऑफ मेटल करके, एंड दैट वाज जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो उसका सेकेंड ही एडिशन था। हमसे पहले एक ही बैच, एक ही बार वो हुआ था, एंड हमारे कॉलेज के सीनियर्स ने, 2 सीनियर्स ने, दे हैड सिक्योर्ड पोजीशंस इन टॉप 10। सो इस कंपटीशन में जो टॉप 10 वुमेन होते हैं, जो टॉप 10 विनर्स होते हैं, दे गेट स्कॉलरशिप एज वेल एज पीपीओ अपॉर्चुनिटीज। तो क्योंकि आपसे पहले वाले बैच में किसी ने जीता है, तो इट्स पब्लिक न्यूज़, एवरीवन नोज़ एंड पीपल कांग्रेचुलेट, जिनको इंटरेस्ट होता है वो जाके उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसा हुआ, क्या हुआ। आई वाज वन ऑफ देम। तो जब हमारे बैच के लिए इंफॉर्मेशन रिलीज हुई थी, आई वेंट टू माय सीनियर, आई स्पोक टू हर, समझी मैं कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड विद द इंफॉर्मेशन आई गॉट कि द फर्स्ट राउंड इज अ क्विज, उसमें तुम्हारे ईसी के माय सो एवरीवन गेट्स अ ब्रांच स्पेसिफिक क्विज। द सेकंड राउंड वाज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी हैड टू सॉल्व with the help of guides or mentors that we had been provided. तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट राउंड क्लियर किया था, उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था, a real life problem statement that Tata Steel was facing in reality, and we had to connect with the mentors we had been assigned. वो यूज करके, गाइड और मेंटरशिप यूज करके, प्लस सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी रिसर्च करके, यू हैड टू कम अप विद अ solution to that problem, a practical solution that could be implemented. So this was the second round. I had a good guide who helped me, plus used the internet extensively. I remember third year का first day, मतलब हमारा थर्ड ईयर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया है कॉलेज में, लकीली इट वाज इन जमशेदपुर ओनली। तो कॉलेज का थर्ड ईयर रजिस्ट्रेशन करके आई वेंट टू एक्सएलआरआई, द वेन्यू वाज एक्सएलआरआई फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन। वो 2 महीने की छुट्टी के बाद इट वाज द प्रेजेंटेशन डे, and that very day I get to know that after the presentation, पहले first round of presentations हुए, फिर second round of presentations हुए, and I get to know that I am among the top 10. So I get a scholarship and a PPO from Tata Steel. Even though third year के बाद वाले break में internship करनी थी, and that was also evaluative, but unless you do something very very bad and you actually destroy your chances, it was almost sure that the top 10 will get a PPO. And I was one of them. Though I tried my best and I was scared, what if I'm not made for it? But it turned out all fine. That is how I got this opportunity. The competition is still live. Tata Steel की और भी कुछ competitions होते हैं. Mind over Matter, which is this one. Women of Metal is only for women, but Mind over Matter is open across genders, open across categories, and a lot of other opportunities जो Unstop पे बहुत easily available है. Unstop पे and a few more web. You just need to put the right filters. अगर आप यूजी कॉलेज के हैं तो आप यूजी का फिल्टर लगा के रखिए। अगर आप मतलब स्पेसिफिकली कोडिंग के अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, स्पेसिफिकली मार्केटिंग के केस कॉम्पिटिशन जानना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू हैव द notification on with the right filters and know the right resources. Unstop is one of them. So अभी तो
this was my story. But अगर अभी किसी को ढूंढना है तो be active on such platforms. Be on a lookout for such competitions. Great, great. That those are some great tips. Thanks for sharing that, Ria. Then yeah, we will continue with your journey. कि अब जॉब के टाइम पे you were not getting that much time for content creation या सोचने का भी टाइम नहीं था because सबको पता है जॉब में टाइम कम मिलता है and that too in the very first job जब तुम सीख रहे होते हो चीजें. Then yeah, you can continue. Then उसके बाद I think so. When was that point came when you prepared for CAT? Mhm. So I am a 2020 pass out. And 2020 में if you remember COVID had hit. February March में हमें घर भेज दिया गया था. तो though we were expected to graduate in May June but that वो भी थोड़ा डिले हो गया था. I graduated online. हमारा YouTube पे convocation हुआ था and 1-2 महीने ग्रेजुएशन भी डिले हुई थी and joining भी बहुत डिले हो गई थी. So my joining, which was expected to be in August, September, had ended up happening in December. And then I joined Tata Steel in December 2020. Around usually the MTT period, which is the management training, management technical trainee period, वो usually जो 1 साल का होता है, वो cut short हो गया था because we had lost so much of time. And वो 7-8 महीने का हो गया. उसके बाद फिर अपनी postings मिली सबको. I was posted in Jamshedpur in the coke plant. And वो शुरू होते ही जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जब पता चला कि एक सेक्शन ऑफ द प्लांट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. द प्रोसेस गोज ऑन 24/7, 365 days a year. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी. प्लस थोड़े टाइम में समझ आया कि I'm not very good at this. This is too technical. This is too specific. मेरे under 40-45-year-olds थे. I was managing a team of close to 30-35 people. उनकी scheduling, उनको resource provide करना ताकि everything runs smooth. जो मैंने बोला, production cannot stop at any moment. In some months, I realized that I don't want to be doing this for long. मेरा एक बहुत बड़ा एक बहुत गुड मेट्रिक फॉर मी टू जज अगर मुझे ये करना है कि नहीं. आई सी पीपल 2 years 3 years अबव मी जो वहां पे हैं जहां मैं पहुंचूंगी अगर इफ आई स्टे ऑन दिस पाथ. एंड डू आई वांट देयर लाइफ? एंड द आंसर वाज नो. तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज कि अब क्या करना है आगे. तो दो पॉसिबल सिनेरियोज थे. एक स्विच और दूसरा फर्दर एजुकेशन. तो फिर आई यूज एलिमिनेशन की टेक्निकल स्टडीज तो नहीं करना, MS या MTech नहीं करना. UPSC आई हैड ऑलरेडी ट्राइड माई हैंड एट इन माई 3rd और 4th year of college जब मेरे पास बहुत खाली टाइम था. एंड देन आई रियलाइज नहीं, दिस इज नॉट माई cup of tea. Do I want the life I will get if I am ever able to clear UPSC? And the answer was no. So the option left was CAT. I did not have a lot of information about an MBA abroad. और प्लस दिमाग में था कि I would not be able to afford such an education. तो वो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया था. The only option left was CAT. I parallelly prepared for both in 2021. I think May, June 2021 से लेकर के November 2021 तक till the time CAT happened. हाँ, I prepared for around 6-7 months. CAT हो गया. And next year, as in 2022 में मार्च अप्रैल में इंटरव्यूज हो गए सारे. उसी टाइम मेरे पैरेलली जॉब इंटरव्यूज भी चल रहे थे स्विच के लिए. एंड द डे आई गॉट a जॉब ऑफर. कन्वर्ट्स तो बहुत लेट आए थे. द डे आई गॉट अ जॉब ऑफर आई रिजाइंड, ये सोच के कि 5-6 इंटरव्यूज दिए हैं IIMs के, कोई एक कन्वर्ट हो जाना चाहिए. अगर कोई नहीं भी कन्वर्ट हुआ तो आई हैव दिस जॉब ऑफर. And I had asked them to wait for a week or 10 days कि मैं accept करूँगी, just give me some time. And luckily, like all of this panned out very, very coincidentally in a very beautiful way. Yes. So जो मैंने 10 दिन मांगे थे वो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक IMB got converted and I accepted IMB and I let go of the other job switch that I had converted. It's great. So then you joined IIM Bangalore. And although I have seen a lot of your videos, reels also, जहाँ पर you are showcasing how the life at IIM Bangalore is. In fact, if you don't know, मैं भी IIM Bangalore आया था in February 2023, जो फेस्ट होता है.
उसमें आई केम एंड आई रियली लाइक द कैंपस, लश ग्रीन कैंपस है, देन सारा स्टोन का बन रखा है, देन वो थ्री इडियट्स वाली टंकी वहाँ पर जो सब लोग जाते हैं। बट यू हैव बीन देयर फॉर 2 इयर्स, वहाँ पर काइंड ऑफ एक घर ही बन जाता है फिर तुम्हारा कैंपस। हाउ वाज़ योर लाइफ एट टाइम बैंगलोर? अ, अभी तक तो आई जो रियली होप आई गेट मोर एक्सपीरियंसेस सो दैट ये जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ वो चेंज हो जाए। बट टिल नाउ दोज़ हैव बीन द बेस्ट 2 इयर्स ऑफ माय लाइफ honestly. Like you said, a very green, very calming, soothing campus, everything taken care of. You are among some amazing, amazing batchmates, amazing professors. The legacy of the place is so great that आप इंस्पायर होते हो कि मुझे भी आगे जाके कुछ करना है। आई वांट द इंस्टीट्यूट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय माय नेम। अगर मैं कुछ अच्छा करूँ तो IMBL ह्यूमनिस्ट लिखा है। इतनी फैसिलिटीज, इतने तरह के स्पोर्ट्स, आप कहीं भी मतलब फ्रॉम द मोमेंट ऑफ राइटिंग IMB स्टूडेंट इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू आगे कहीं भी आप मिलते हो, किसी को बताते हो देयर इंटरेस्ट, तो all of that package was truly humbling and something that I'm very, very grateful for. The friends you meet, the people like the people you meet, the friends you make, उनके साथ spend किया हुआ time, वो no mental हुँ। pressure, कोई मतलब it's like a 2-year paid vacation. आपको ऐसे काम की चिंता नहीं है, क्लासेस अटेंड करने हैं, बट कुछ-कुछ क्लासेस में तो बहुत मज़ा भी आता था। जिन क्लासेस में मज़ा नहीं आता था वो ठीक है, दिस इज़ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लाइक लेट्स बेयर हुँ। थ्रू इट। सो या दिस वाज़ इट ओवरऑल एंड एक पॉइंट के बाद आई थिंक इन माय थर्ड टर्म के आसपास व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, तो वो भी एक एडेड पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी हो गया व्हिच वाज़ कंप्लीटली रिलेटेड टू और हैपेंड बिकॉज़ आई वाज़ एट IMB. सो हाउ इट स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन? Mhm, mhm. So from the first week itself, when I joined IMB, like just like any person who's having new experiences, मैं बहुत फोटोज लेती थी, बहुत हुँ। वीडियोस लेती थी। कुछ भी नया हो रहा है, फर्स्ट वीक में ओरिएंटेशन हुआ, उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज हुई। वी वर टेकन टू द न्यू IMB कैंपस, वी वेंट टू ऑफ साइट्स, वी वेंट टू प्लेग्राउंड्स, वी वेंट टू डांसिंग सेमिनार्स, जो भी कॉलेज ने इवेंट्स सोच के रखे थे हमारे ओरिएंटेशन के लिए, फॉर द बैच टू मिंगल, टू नेटवर्क, टू लाइक कम आउट ऑफ देयर शेल्स। ये सारे इवेंट्स जो हुए, सबके फोटोज लिए, सबने लिए, मतलब मे बी मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं, बट जस्ट लाइक एनी पर्सन हू इज़ एक्साइटेड अबाउट द एक्सपीरियंस दैट्स हैपनिंग, आई वाज़ टेकिंग पिक्चर्स, टेकिंग छोटे-छोटे वीडियोस एंड अ, थोड़े टाइम बाद मे बी आई डिड नॉट एक्ट ऑन इट एट द मोमेंट, बट कभी खाली बैठी हूँ तो एक मतलब आई जस्ट कंबाइंड द 5 क्लिप्स दैट आई हैड टेकन, उसके पीछे गाना लगाया एंड आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम। कुछ नहीं हुआ, नथिंग, इट्स ऑन माय अकाउंट, जस्ट अ मेमोरी पीस फॉर मी। फिर कुछ दिन बाद कोई और इवेंट हुआ, आई क्लिक पिक्चर्स, आई मेड वीडियोस, अगर अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, तो डिड द सेम थिंग, कंबाइन द 5 वीडियोस, पुट द सॉन्ग बिहाइंड इट, पोस्टेड इट ऑन माय पेज, नथिंग, अगेन अ मेमोरी पीस फॉर मी। सो इसी तरह से धीरे-धीरे करते-करते और इवेंट्स होते गए और मैं वीडियोस बनाते गई। कब अब तो थोड़ा कॉन्शियस होने लगा। पहले इट वाज़ कि लिया तो लिया, नहीं लिया, भूल गए तो भी कोई बात नहीं। बट आफ्टर अ पॉइंट, बी आफ्टर 5-10 वीडियोस, आई बिकेम कॉन्शियस कि हाँ, मुझे मज़ा आता है वो वीडियो को कंबाइन, मतलब नाउ वी कॉल इट रील्स, बट उस टाइम मे बी आई न्यू इट वाज़ कॉल्ड रील्स, बट ऐसे मैं सोच के नहीं बना रही थी। बट आई हैड आफ्टर अ पॉइंट आई हैड बिकम कॉन्शियस कि मुझे मज़ा आता है एंड मोर दैन एनीथिंग आई एम मेकिंग अ video repository or a video documentary of my life. I would love to come back to this. So this kept on going, and I don't even, I will not be able to pinpoint the date or the metric कि इतने followers हो गए तो मैंने seriously लेना शुरू कर दिया, या इस date हुँ। के बाद से I was like कि अब तो मैं हर हफ्ते बनाऊंगी। I don't know when that switch happened, but मजा आता था। एंड कभी-कभी मतलब वो एक्सटर्नल वैलिडेशन भी मिलता था तो अच्छा लगता था कि ओके, हुँ। पीपल आर लाइकिंग इट एंड कमेंटिंग। सो दिस इज़ हाउ इट सो स्टार्टेड। मतलब यू हैव डन इट फॉर योर ओन सैटिस्फैक्शन, योर ओन काइंड ऑफ एल्बम बनाने के लिए किया था, नॉट सीकिंग दैट क्या लाइक्स आएँगे, फॉलोज़ दैट इज़ आएँगे। हाउ इट स्टार्टेड। यस। बट लेट्स से थोड़े टाइम बाद, लेट्स से सो यू स्टार्टेड इन योर फर्स्ट ईयर, लेट्स से ई सेकंड ईयर व्हेन यू वर इन एक्सचेंज, मतलब आई थिंक यूरोप पूरा ट्रैवल कर रहे थे एंड देन यू वर क्रिएटिंग ऑल दिस कंटेंट, तो क्या तब आया था कि यार
रील व्यूज नहीं आ रहे या शेयर्स नहीं आ रहे, यार ये मैंने रील बनाई इस कंट्री की, इस कंट्री में इतना आया नहीं थोड़ा है पहले कि था। थोड़ा पहले आ गया था। सो 2023 के स्टार्टिंग में आई हैड टेकन अप दिस चैलेंज कि हर हफ्ते मैं एक रील बनाऊंगी, मतलब वीक 1 ऑफ 2023, वीक 2 ऑफ 2023, वीक 3 ऑफ 2023 आई कंप्लीटेड, वो मैंने पूरा अच्छे से किया था। और उसी 2023 में ही सितंबर में आई वेंट ऑन एक्सचेंज। तो वो वीक वाले तो वीडियोस चल ही रहे थे। उसके अलावा बिफोर आई वाज गोइंग ऑन एक्सचेंज, मैंने एक्चुअली बैठ के सोचा था कि आई एम गोइंग टू बी गोइंग टू सच एन अमेजिंग प्लेस जो बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिलता है। फॉरगेट बहुत लोग, मैं पहली बार इंडिया के बाहर जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू बी ट्रैवलिंग टू सो मेनी कंट्रीज। आई एम गोइंग टू बी हैविंग सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। इज देयर अ वे आई कैन मेक अ सीरीज आउट ऑफ दिस टू? और उस समय मैंने मंकी मैजिक, आई डोंट नो इफ यू नो द क्रिएटर, देयर इज अ क्रिएटर कॉल्ड मंकी मैजिक। उनकी एक ओके। 100 डेज ऑफ इंडिया सीरीज आई थी, जो कि विच वाज हिम ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, 100 डेज 100 रील्स, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ही इज एन अमेजिंग स्टोरी टेलर। तो आई रिमेम्बर मैं और मेरा भाई बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या, एंड ऐसा रफ वेग आइडिया लेकर के स्टार्ट किया। पहले सोचा था कि हर 100 वीडियोस बनाएंगे, 50 वीडियोस मतलब हर ऑल्टरनेट डे एक वीडियो बनाएंगे। बट वंस आई लैंडेड देयर आई रियलाइज्ड कि इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए। वहां पे भी मैं स्टूडेंट थी, आई वाज इन अ attending college. I had to attend classes. I did not have a non-attending college in France. कौन सी कंट्री था? France. फ्रांस। The place was Lille, ISEG Lille, ISEG School of Management Lille. तो वहां पे पहुंच के पता चला कि मैंने कमिट तो कर दिया है कि हर ऑल्टरनेट डे एक रील आएगी, पर हो नहीं पाएगा। क्लासेस जाना है, खाना बनाना है, हर थोड़े दिन पे दूसरी कंट्री ट्रैवल करनी है, उसका आइटनरी प्लान करना है, उसकी पैकिंग करनी है, दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, 100 तरह की चीजें थी। तो ऑल्टरनेट डे तो नहीं हो पाया, बट और बहुत टाइम लग गया। मतलब मैं जब एक्सचेंज के पे वापस आ भी गई थी, तो भी मेरा पूरा फुटेज और जो 50 वीडियोस आई हैड प्रॉमिस्ड टू माई सेल्फ, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इट एक्चुअली मैं एक्सचेंज से वापस आई थी दिसंबर में, एंड सीरीज एंडेड इन February. इट डिड नॉट गो एज प्लान्ड, बट मैंने हाँ सोच के, एफर्ट डाल करके, रिकॉर्ड करके, स्क्रिप्ट स्टोरीज लिख के कि इसको कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द व्यूअर्स, इसमें बहुत अच्छा आई थिंक। हाँ, आई थिंक एक्सचेंज वाज द टाइम। एक्सचेंज वाला जो सीरीज था 50 डेज ऑफ एक्सप्लोरिंग, वहां से आई थिंक आई टुक दिस सीरियसली कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा एफर्ट डाले। ऐसा नहीं कि अगर हुआ तो इवेंट हुआ तो मैंने फोटो खींच के डाल दी, नहीं हुआ तो बहुत दिन तक देयर इज नथिंग ऑन माय पेज। This I think this is where I got more serious, or I got actively, consciously involved. Maybe exchange got me a मतलब introduce my content to a lot of people, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि your exchange series was the first time when I got introduced to your page. But this is not, mm, मैं कैसे, how do I put this? It did not get me a lot of followers. It because I'll explain why. ये बाद में समझ आया, मतलब all this is coming from hindsight, मतलब बाद में मैंने ये चीजें रियलाइज की। उस समय आई वाज जस्ट, मेरा हर कुछ दिन में एक रील निकल जाए वही मेरा टारगेट था। एनालाइज करने का तो उस समय दिमाग में आया भी नहीं था। आई डिड नॉट इवन नो हाउ टू डू इट, और कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डाली थी उसमें। बट लेटर आई रियलाइज दैट माई ऑडियंस मेजरली वांट्स टू सी IMB लाइफ फ्रॉम मी, बिकॉज देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स जो या तो उस साल निकाल नहीं पाए कैट, या दे नो दे कैन नेवर, मतलब वो नहीं जा पाएंगे IIM, बट दे वांट टू नो कि क्या होता है, गिविंग समथिंग दैट दे कैन नेवर हैव, एंड दैट फॉर माय ऑडियंस फॉर IMB लाइफ। तो एक्सचेंज उससे थोड़ा सा अलग हो गया। दैट इज यू more like a travel series, which is not what my audience exactly expects from me. तो ये मुझे बाद में समझा कि maybe this is why it did not get me a lot of followers, but it did introduce my content to a lot of new people. एंड मैंने ये कहीं देखा था, सॉरी सुना था, नैस समिट एक होता है, देयर यशराज मुखाटे ने बोला था कि देर आर, सो स्पेशली ऑन द इंस्टाग्राम रील्स में इट्स वेरी क्विक फॉर्म, अटेंशन ग्रैब करना होता है इन द फर्स्ट 3 seconds ऑफ द वीडियो ओनली। तो he told to the audience there कि you have 3 chances on Instagram. पहली रील देखोगे देन पीपल, मतलब लोगों को ये लगेगा कि हाँ यार ये कोई तो है, लेट्स से पहला उनको कंटेंट चमका, दे विल सिंपली लाइक इट बट नॉट फॉलो यू। सेकंड में देन उनको आएगा यार इसको पहले कहीं देख रखा है,
तो चलो इसकी प्रोफाइल और अच्छे से देखते हैं। और अगर तीसरी बार भी इफ यू क्लिक विद द ऑडियंस, देन दैट इज द मोमेंट दैट पीपल विल फॉलो यू। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी। और देन वही चीज़ मेरे को अभी हिट करी कि व्हेन यू टोल्ड ना कि यार लोगों ने मेरे को फॉलो नहीं किया व्हेन यू वर क्रिएटिंग एक्सचेंज स्टोरीज़। अ, तो यहाँ पर लेकिन वो वैल्यू का आ गया कि योर ऑडियंस वाज़ सीकिंग समथिंग डिफरेंट कंपेयर्ड टू व्हाट you were offering at that point in time. But it's great that but yeah, maybe you also maybe bought brought them back the second time. Yeah, this really makes a lot of sense. हुँ, Mhm. कि उनको लगा होगा कि यार इसको कहीं तो देखा है तो लेट्स फॉलो देम, इनकी जर्नी फॉलो करते हैं। बट दैट्स ग्रेट। येस, दैट्स ग्रेट। एक्सचेंज के बारे में आई वुड लाइक टू नो कि हाउ मेनी कंट्रीज़ यू ट्रैवल्ड I traveled to 12 countries. एंड व्हिच वन वाज़ योर फेवरेट? Um, I have three, like I have top three. अगर it depending on the day कोई कौन मुझसे कब पूछता है, मैं इन तीनों में से एक आंसर करती हूँ. One is Austria. Mm, so there's a village in Austria called Hallstatt. That to हुँ, me हुँ। felt like the most beautiful place on earth. So or plus the experiences I had in Austria also made it very special for me. Ice skating हो गया, hiking हो हुँ, गया और ये सब. तो Austria is definitely on the list. Second is Switzerland. Switzerland is the most beautiful country on earth. मतलब जिधर भी हुँ, देखो, जहाँ भी देखो, इतना सुंदर कि I can't explain. You'll have to go and see it with your eyes to experience it. And the third is Iceland because it does not feel like Earth. It feels like an extraterrestrial place. सिर्फ एक रोड है पूरे कंट्री में covering the circumference, or other than that it's ice and lava and black soil and grass and greenland. Very minimal infrastructure, mostly barren, but yeah, and it does not feel like earth. The landscape, it's so different from what we are used to seeing. So yeah, these हुँ। three are always on the list. Depending on the day you ask, you will get one out of the three. दैट्स ग्रेट। सो नाउ व्हेन यू सी योर जर्नी, सो कभी-कभी होता है ना हाइंडसाइट में देखते हैं, मैं यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया। सो लेट्स इफ वी सी और इफ यू सी योर जर्नी, अ गर्ल फ्रॉम जमशेदपुर वेंट टू बैंगलोर एंड देन ट्रैवलिंग अक्रॉस द यूरोप, कैसी फीलिंग थी वो? Hmm. Surreal, again, grateful, life changing, eye opening, all these adjectives combined. Um, so the place that I come from, I think I'm not sure. I'm not 100% sure. Maybe extended family may, but I was among the first in my family to travel outside India. First in my family to get into an IIM and a lot of other things. So the reason I'm saying this is not very normal, or I don't come from a background जहाँ पे this is very normal कि लोग अच्छा करके आगे, मतलब अच्छा करके अच्छे कॉलेजेस में जाके अच्छी नौकरियां करते हैं. It's a very um, underprivileged or even very lower middle class family. तो उस समय तो नहीं सोचा था कि आई विल गेट दीज अपॉर्चुनिटीज, बट स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहला जंप लिया तो सेकंड स्टेप दिखा, सेकंड स्टेप किया तो थर्ड स्टेप दिखा. फर्स्ट स्टेप में इफ यू वुड आस्क मी विल आई बी डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, आंसर वुड हैव बीन एब्सोल्युटली नो. बट मे बी स्टेप में 11 स्टेप जब दिख रहा है कि इफ आई हैव कम टू IMB, तो द नेक्स्ट स्टेप इज गेटिंग अ चांस टू गो ऑन एक्सचेंज. तो वहाँ पे रियलाइज़ हुआ, ओके, इफ माय ग्रेड्स आर डिसेंट इनफ, आई विल गेट दिस चांस and I'll have this amazing experience. So if you had asked me back then at step 0, would not have believed it, but ऐसे जैसे जैसे steps आगे बढ़ते गए, felt like reality and got to experience that. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ गलतियाँ करी. I broke my arm while I was on exchange. I lost money. I made a ISD कॉल नॉर्मल वाले, और मैंने 30 मिनट के 7,000 रुपए का फाइन पे किया है. एंड अ लॉट. यस, यस, बट ओवरऑल अमेजिंग. दैट्स ग्रेट टू नो। बिकॉज़ ऐसे जब जर्नी में आप करते हो ना, यही लगता है यार कि यार 10 साल पहले सोचो तो मैं यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता था। बिल But now when you have done it, it's really feels surreal. And so then now you are in the full-time role in a job. You are
focusing on your health also. You have this some fitness related goal also, like half marathon in this year. Then Mhm. how come or how are you managing content creation amidst Mm, all these things that is happening in your life? mhm. Mm, Short answer, I feel that I'm not uh, doing 100% of what I can, क्योंकि time is limited and sometimes procrastination or laziness creeps in, and I am hard on myself sometimes. But I also know that it is so much more than what a normal person is doing. There, there are a lot of people जिनका एक job होता है, and after that that's all they can do or they want to do. Some people even just want कि ठीक है मैं काम करूँ और Hmm. that is what I want from myself. And I relax on the weekends. जो भी मेरे पास टाइम होता है मैं रिलैक्स करूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, वो उनकी प्रायोरिटीज हैं. If you ask me, I have always wanted a balanced life. I have always wanted कि मैं अपने काम में अच्छी हूँ, मैं अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंड्स को टाइम दूँ. I have a very fit, healthy, flexible body. I also have time for some hustle, some side thing, some hobby. तो ये पहली चीज़ तो इंटेंट से आती है कि आपको जानना होगा कि क्या ये आपको चाहिए? इज़ दिस व्हाट यू वांट? Right. फॉर माय केस दैट आंसर इज़ येस, आई वांट टू बैलेंस दीज़ थिंग्स इन माय लाइफ. अब उसके लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों हमेशा बराबर चलेंगे. देयर विल बी टाइम्स व्हेन कुछ ऊपर-नीचे होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द थिंग दैट सफर्स इज़ कंटेंट इन माय केस आउट ऑफ द 4. बट बिकॉज़ इंटेंट है, तो कभी-कभी इवन व्हेन आई एम लूजिंग ट्रैक कि ठीक है, 4-5 दिन से कुछ लिखा नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, बट बिकॉज़ द इंटेंट इज़ देयर, आई कम बैक टू इट कि ठीक है, हफ्ते में कुछ नहीं हो Hmm. पाया, वीकेंड पे टाइम निकाल करके आई विल सिट डाउन एंड राइट समथिंग, आई विल सिट डाउन एंड रिकॉर्ड. अगर टाइम है तो खुद एडिट करूँगी, नहीं तो माय ब्रदर आल्सो हेल्प्स मी. और खुद भी ऐसे गिल्टी या कंसाइंस कम्स बैक इन द पिक्चर कि इट इज़ वन ऑफ द 4 थिंग्स दैट आई वांट टू बैलेंस, एंड अगर मैं एफर्ट नहीं डालूँगी तो वो नहीं रहेगा ऑन ट्रैक. सो हाँ, ये सब चीज़ें मिला करके And काफी because you have presence on all three platforms, Instagram, YouTube, LinkedIn, काफी एफर्ट वाला गेम भी है. एंड जनरली कुछ लोग होते हैं कि अगर कंटेंट क्रिएशन करना है दे आर मेजरली ऑन वन प्लेटफॉर्म, यार एक प्लेटफॉर्म पर है चलो यहीं पर करते हैं. बट यू बीइंग ऑन थ्री प्लेटफॉर्म एंड दैट टू डूइंग विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज काफी एफर्ट वाला गेम है. तो वन मोर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन आ रहा है कि सिंस यू हैव प्रेजेंस ऑन ऑल थ्री प्लेटफॉर्म्स एंड यू वांट टू गिव इट अ शॉट इन द सेंस कि दिस इज योर वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट in your definition of balancing the life. So what is your plan with the content creation? Where do you see कि यार इसको कहाँ तक लेके जाना है? सो कहाँ तक लेके जाना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो सबके मतलब एस्पिरेशनल गोल्स ही होते हैं कि कभी 1 मिलियन टच करेंगे, कभी 50K टच, 500K टच करेंगे. इवन आई हैव दोज गोल्स, बट आई ऑल्सो नो दैट विल नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट. ऐसा नहीं है कि मतलब मे बी देयर इज अ चांस ऑफ गोइंग वायरल 1 in a million, बट होगा नहीं होगा, no one knows. The only other sure short way is to put out value adding content day after day, day after day, day after day. तो गोल्स तो हैं, एस्पिरेशंस तो है, बट आई नो कि वो एफर्ट लगेगा. बट आई नो कि एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, इन सब वाले फील्ड में रियलाइजेशंस में आई हैव टू कीप प्रोड्यूसिंग कंटेंट. एक टाइम पे मुझे ये भी लगा कि देयर इज दिस अदर क्रिएटिव साइड ऑफ मी आल्सो व्हिच वांट्स टू क्रिएट रैंडम स्टफ, कोई फिक्स पैटर्न नहीं. तो आई क्रिएटेड अनदर चैनल कॉल्ड रियलाइजेशंस अनफिल्टर्ड. Nowadays, I've seen that you are creating content mainly on CAT and MBA prep on Instagram. So since this time, जो ये time है अभी, so now a lot of MBA aspirants will be giving the interviews for B schools after their CAT results are out. So any tips for the audience out there, aspirants को कुछ, because you have we both actually have seen that phase कि कैसे IIMs के interviews crack करने हैं and then you go to your dream college. So what advice would you give to them? Hmm.
सबसे पहले तो इट विल बी कि हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका कैट में अच्छा स्कोर आ रहा है या अगर बहुत अच्छा नहीं भी आ रहा है, आपका बॉर्डरलाइन चांस है कि यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल, प्लीज हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट यू हैव लिव्ड अ लाइफ जिसके बारे में आपको पता है, एंड आपको बस आगे वाले को अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी जर्नी कन्विंसिंगली बतानी है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विथ मी, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, दिस इज हाउ आई इंटेंड टू यूज इट, दिस इज हाउ एमबीए कम्स इन द पिक्चर। ऐसा कुछ, क्यों आप हो वहां पे, उस रूम में आप क्यों बैठे हो, तो वो समझाने के लिए आपको अपनी स्टोरी और अपने वर्थ में बिलीव करना होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। नाउ कमिंग टू द टेक्निकल्स, 4-5 चीज़ें ही होती हैं। एक तो आपका यूजी कॉलेज में जो आपने पढ़ा था, अगर आप स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो, तो वो रिवाइज़ कर लीजिए। देयर विल डेफिनिटली बी क्वेश्चन्स अबाउट योर यूजी सब्जेक्ट्स, आपके कॉलेज इंटर्नशिप्स। सेकंड इज़ आपका वर्क एक्सपीरियंस। इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, यू हैव टू बी वेरी थरो विद इट। आपने क्या काम किया है? उस आपके काम का आपकी टीम पे क्या इम्पैक्ट था? आपके ओवरऑल टीम के काम का आपके कंपनी में क्या इम्पैक्ट था? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपकी कंपनी हम्म, जिस सेक्टर में काम कर रही है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन दैट इंडस्ट्री, आपको वो जानना होगा, आपको वो समझना होगा, तो रीड अप ऑन दोज थिंग्स। देन देयर इज जनरल अवेयरनेस, दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट आर द अगेन व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट आर लीडिंग द वर्ल्ड, एंड मे बी इवन हैव एन ओपिनियन ऑन दोज। कभी कभी मे बी ओपिनियन फॉर्म करना हर मतलब नहीं हो पाता, तो मे बी जस्ट नो द प्रोज एंड कॉन्स, मे बी नो द स्टोरी फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इशू। तो वो सब पढ़िए, वो सब समझिए, एंड फाइनली नोइंग योर सेल्फ वेरी वेल। ये जो हम एचआर क्वेश्चंस की बात करते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, वेयर यू सी योर सेल्फ, ये इन सब के मतलब अवेलेबल आंसर्स हैं इंटरनेट पे, बट make give yourself a chance to actually reflect on your life by the medium of these questions. उससे आपको अपने बारे में कुछ पता चलेगा, आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप एमबीए क्यों करना चाह रहे हैं, एंड दोज आंसर्स विल हेल्प यू कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट, एंड देन आगे वाला इंसान, द इंटरव्यूअर। एंड मे बी दैट सेल्फ अवेयरनेस, दैट थॉट प्रोसेस इज व्हाट इज बीइंग लुक्ड फॉर, कि अगर किसी इंसान को अपने बारे में ही नहीं पता, तो वो मतलब, or maybe the person just has surface level knowledge even on about themselves, so that's not something good. So give time to actually think and reflect. यही 3-4 चीजें हैं, इनको अच्छे से करिए। मे बी इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट स्पीकिंग, तो कम्युनिकेशन का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। um, one very good technique that you can follow is just have a like selfie camera on, switch on the video and record something, कुछ भी random बोलते हुए, and then uh, stop the video. Now एक पहले बार आप म्यूट करके वीडियो को सुनिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे लग रहे हैं, बहुत बहुत अजीब लग रहा है क्या। सेकेंड टाइम पे सिर्फ ऑडियो सुनिए कि आप कैसे बात करते हैं, डू यू यूज अ लॉट ऑफ फिलर वर्ड्स, आप बीच बीच में इंग्लिश बोलते वक्त हिंदी तो यूज नहीं कर रहे, ऐसा कुछ। एंड देन एक बार पूरा वीडियो देखिए विद द ऑडियो एंड द वीडियो, एंड एनालाइज योर सेल्फ, डू दिस एवरी डे मे बी, एंड you will see improvement. So yeah, these are the 5 things that you can do. that's a very practical and very useful tip that you gave. कि record yourself and then see, पहले वीडियो फिर ऑडियो एंड देन सी तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन सही है कि नहीं, ऑडियो कैसा आ रहा है, मतलब हाँ जो वॉइस How मॉड्यूलेशन yeah. कैसा है। यस, वेरी 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 प्रैक्टिकल टिप आई वुड से। एंड मेरे को बात करते करते अपने दिन याद आ गए कि यार कैसे बकेट्स में हम डिवाइड करते थे कि वाई एमबीए, देन खुद के क्वेश्चंस, वर्क एक्सपीरियंस। Great. So really, really nice talking to you. And after all these heavy talks, and before we wrap up, there is one thing that we do that is called the Creators Connect, where I'll ask you 3 questions, and you will have to answer it instantly. जैसे rapid fire round होते हैं. Okay. Whatever thoughts or emotions are coming to your mind. ठीक है? So we'll start. Okay. So the first one, 3 words that describe your content. Inspirational, um, growth inducing, and helpful. Okay. Second, with your favorite social media app and why? Mm,
does YouTube count as social media? Yes. Yes, then YouTube. I Why? I use YouTube for most of the things. अगर कुछ भी समझना है तो instead of googling I go to YouTube and maybe see a small video about it. कुछ कुछ लोग जिनकी लाइफ या जिनके लाइफ चॉइसेस, जिनके डिसीजन, जिनके थॉट प्रोसेस मुझे बहुत पसंद है, आई वॉच लॉन्ग फॉर्म वीडियोस उनके। प्लस इसमें इंस्टाग्राम जैसा नहीं है कि एक बार आप लूप में चले गए तो या जो आपको फीड दिखा रहा है वही देखेंगे। यू कॉन्शियसली गो एंड वॉच थिंग्स और आपके फीड पे भी लिमिटेड चीजें आती हैं एंड द कनेक्ट दैट यू हैव विद द क्रिएटर इज सो मच मोर डीपर than any other platforms. Right. Last one. One trend on social media that you would like to disappear and why? Um, this is a tough one. Yeah, I don't know if this is a trend or not, but it is a real phenomenon that is happening. People using AI to just copy your content and write AI generated comments. मतलब मैंने कुछ एक दो पैराग्राफ लिखा है about a thought that I had. अब वो वही सेम चीज की समरी मेरे कमेंट में लिख रहे हैं। आई एम लाइक मैंने वही लिखा है। तो या एआई जनरेटेड समरी कमेंट्स दे आर ये मैं बता दूंगा वांट टू आएगा फिर बाद में व्हाट्स योर थॉट लास्ट में आ जाएगा ठीक है yes that's great and thank you so much Ria for doing this it was really nice talking to you because तुम्हारी जर्नी से मेरे को एक ये चीज बहुत मिली सीखने को कि यार यू विल बी बिजी इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ इट्स अप टू यू कि तुम उसको कैसे बैलेंस करते हो सो यू हैव टू पिक कि यार मुझे ये चीज अभी करनी है 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 and this is how I define my balanced life so that is a really I mean one thing out of your whole journey which I picked and obviously there are a lot of learnings in your journey and I hope audience को भी ये चीजें अच्छी लगे and thank you so much for doing this Ria Thank you for this opportunity, Ankit. I wish you all the very best with the Creators Podcast. And yeah, let's stay in touch. Thank you so much for watching this episode till the end. I hope आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. At the Creator School, we pack all the insights, inspiration, and value from the podcast in a PDF case study, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरी आपसे 3 रिक्वेस्ट हैं. नंबर 1, हिट द लाइक बटन. नंबर 2, सब्सक्राइब टू द चैनल. And number 3, share this episode with at least one of your friends. This motivates us to keep providing value through our content. And we would like to hear your thoughts and feedback on this episode. So do reach out to us via comment section, email, or DM us. Also, do follow us on Instagram and LinkedIn for regular updates. Until then, this is your host Ankit Bedi, and I'll see you in the next episode of The Creators Podcast.